Hello friends, I am A.K. Saxena, a former civil servant who has spent about 35 to 36 years of service in the Government of India in various capacities. I held various challenging jobs during the course of my official career, and my most challenging job was a stint of about 7 years in the Union Public Service Commission, where I held a very critical job dealing with the secret part of all the examinations held by the UPSC. I hope you understand what is meant by the secret part of all the examinations. That included setting of question papers. That was all done by me, of course, with the assistance of examiners, appointment of examiners, holding the interviews, finalization of results, valuation of answer books. All these jobs I used to perform, and single-handed most of the jobs were performed, because I could not share the question paper set by the examiner with anybody, because leakage is a threat to every examination system. I have a propensity to speak for hours, and the topic for which I have been invited to address all of you is dealing with the interview system, which in UPSC parlance we call personality test, but in usual common parlance we call it interview. So I'll use the term interview, it is easier. I can speak for hours, it's my very favorite topic, but then there are some limitations of time. I have been asked only to condense my address to you within, say, 10 minutes at best. I would like to touch upon some broad points. I know what is going on in your mind. Why am I addressing you today when the results of the main examinations of 2020 are still awaited? You must be wondering, is it not too early? I am saying that no, it is not too early. It is never too late either. In fact, I have always told, I have been doing this job of mentoring civil services aspirants for the past about 13 to 14 years. I must have mentored about 6,000 candidates, many of them toppers. So that was my contribution to society. And I'm really feeling very privileged today that I'm in the midst of brilliant minds like you. I call you, even the results of the mains are have not been announced so far. In all probability, as per my information, these will be announced in the last week of this month, before Holi. So you must all be hopefuls. I am given to understand that the Plutus IAS is already performing the job of preparing candidates for both the prelim examinations as well as the main examinations, conducting mock interviews. I think it's a very noble cause, for which I wish them all the very best, and I'm always available to help them whenever they need my help. I shall also be heading boards as and when it is necessary. I won't say it will be possible for me to come every day, but as and when they ask me, I will be available to help you, subject to my other limitations, my other commitments. One thing I would like to share with you, when I worked in the UPSC for 7 years, from 1989 to 1996, 7 years, and I appeared in the IAS examinations in the year of the Lord 1970. I think none of you was born at the time. No. I immediately after my post-graduation in chemistry from Delhi University, I tried my luck for this examinations. हालांकि बहुत ज़रूरी है, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इवन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, लेकिन आत्मनिर्भरता जो है आपको खुद लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. Don't depend wholly and solely upon one person. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया,
1980 to 9 I was in UPSC, and I brought about many reforms also. The paper on essay was introduced by me, and paper on medical science also was introduced by me in the year 1993 or 94. मैंने immediately after my retirement in 2007, I entered this field. I said, let me help, because I have got hands-on experience of seeing many interviews. मैंने ये आपको बताना भूल गया कि मैं 1989 के बाद I joined DOPT, Department of Personnel, as Joint Secretary, and then I rose to become Secretary of some Public Enterprises Selection Board, which selects candidates for all top level posts, chairman, functional directors of all public sector undertakings. So I used to watch the interviews, so I knew where to, how to fare, how to perform best in the interview. I was focusing on that. I was mostly as an observer. There were chairmen who were asking questions. So I watched interviews for ONGC chairman, IOC chairman, and they used to come to me before the interview for briefing also. I used to brief them कि आप में ये खामी है तो आप इसको इस तरह से तैयार करिए. Although I had no technical knowledge, but then my experience taught me many things. मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे और इंटरव्यू जो हैं, ये दो पेपर ऐसे हैं, लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में. There are so many hundreds of institutes are sprouting in every nook and corner of Delhi. बट ये दो पेपर्स हैं, याद रखिए. अब बच्चों को मैं बता रहा हूँ जो आपका कैरियर बनाएंगे या बिगाड़ेंगे. ऐसे एंड mock and interview, personality test. Essay because it is something which tests your understanding, depth of your understanding. आपका अभी तक आपने जो prelims दिया है या mains दिया है, you had worked in complete anonymity. Examiners did not know who you are, whether you are a girl or a boy, how old are you, nobody knew. It is all anonymity. Prelims भी वही है, मैकेनिकल होता है तो उसमें भी आप वो नहीं जानते हैं. सेम थिंग इन दी मेंस एग्जामिनेशंस. तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. देखिए, यूपीएससी इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड पर्सनैलिटीज, पर्सन्स. आप इमीडिएटली आफ्टर, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है, इट्स अ वेरी मिसप्लेस्ड परसेप्शन कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर देंगे तो आप सिविल सर्वेंट बन गए. ऐसा नहीं है. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन. प्लीज़ डोंट ओवर एस्टिमेट योर पोटेंशियल. यू आर नॉट सिविल सर्वेंट. इवन आफ्टर योर ट्रेनिंग इन लवासना और वेरेवर, यू आर नॉट ए सिविल सर्वेंट. आपकी फील्ड ट्रेनिंग भी हो जाएगी, यू आर स्टिल नॉट ए सिविल सर्वेंट. ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको जो मिलेगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, उसके 2 साल के बाद यू विल स्टार्ट बिहेविंग, यू शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए सिविल सर्वेंट. बिकॉज उस दौरान में आपको मुलाकात होगी बहुत से दुष्ट लोगों से, मैं कहूँगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल क्लास आप जानते हैं, पर्टिकुलरली स्टेट्स लाइक आई डोंट नॉट नेम, उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड इवन इन द साउथ, बहुत ज़्यादा civil servants are at the receiving end. They always get a taste of tongue lashing by the political class. वो बहुत ज़रूरी है. वो देखते हैं आपको, यूपीएससी आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बॉडीज़ देती है, दे प्रोवाइड पर्सन्स, बॉडीज़. उसको बाद में ग्रूमिंग कैसे करनी है वो समय के साथ होगी. एकदम आप सिविल सर्वेंट नहीं बन जाएंगे. तो ग्रूमिंग होगी, लवासना में ट्रेनिंग होगी, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी, फील्ड ट्रेनिंग होगी, फिर आप काम पर भी जाएंगे. आपको बॉस से भी झाड़ खानी पड़ेगी, पॉलिटिकल क्लास से भी जानी पड़ेगी. हाउ टू मैनेज दी मीडिया. मीडिया दीज डेज इज़ वेरी इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको तैयार रहना पड़ेगा. दे विल प्ले हैवक विद यू. अगर आपने ज़रा सा आंसर किसी क्वेश्चन का गलत दे दिया या अवॉइड कर दिया, उनको डिफ्लेक्ट कर दिया, देन यू विल हैव इट. सो इन सबको एक्सपीरियंस के बाद ही आप सिविल सर्वेंट कहलाने लायक होंगे. एकदम नहीं आप सिविल सर्वेंट बन जाते. सिर्फ यूपीएससी का काम है टू select people who are good material to be civil servant. Mind my words, who are good material to be in civil services. अभी बने नहीं हैं,
हाँ, उनको बाद में ग्रूमिंग होगी, बड़ी चिजलिंग होगी, तो उसके बाद वो बनेंगे, तो अलग बात है। मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी तक आपका जो बच्चों का जो हुआ है, एनोनिमिटी में काम हुआ है प्रीलिम्स या मेंस में, अब आइए आप उससे पूरी पर्सनैलिटी को आपका जज नहीं किया। यूपीएससी इज नॉट सेटिस्फाइड। यूपीएससी कहती है कि हम आपको रूबरू देखेंगे, आपको आमने सामने बैठ कर देखेंगे। उसके लिए उन्होंने इजाद किया इंटरव्यू का, पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं इसको यूपीएससी के पार्लर्स में। पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, हाउ डू यू रिएक्ट अंडर सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस। आपको पॉलिटिशियंस ने कोई गाली दे दी है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। दे यूज ए वेरी फाउल लैंग्वेज, यू मस्ट बी रीडिंग इन द न्यूज़ पेपर्स। वन चीफ सेक्रेटरी वॉज पॉलिटिशियंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिसबिहेव। पर आपके जो मंत्री हैं वो भी बहुत मिसबिहेव करते हैं। एनीवे, इट इज़ देयर। अब मैं उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए। तो ये जो आपसे साक्षात्कार जिसे कहते हैं वो आप यूपीएससी करता है, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं देखी हैं, आपको आमने सामने बैठ कर देखी जाएंगी। बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं, होपफुल्स हैं, उनका ये मानना है, गलतफहमी उनको है कि अगर हम ने 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। हमारा भी ये मानना था। आई फाउंड आफ्टरवर्ड्स इट इज़ नॉट ट्रू। जब मैं बैठा था 1971 के इंटरव्यू में, मैंने भी सोचा कि इतने क्वेश्चन पूछे हैं तो मैंने इतने जवाब दिए, इतने नहीं दिए, मेरा तो इंटरव्यू खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस which decide your fate and the marks which you are going to get in the interview. It's how you present yourself. अगर आपको नहीं आता आंसर किसी क्वेश्चन का, politely say no. मैं आपको उसका एक ब्रॉड पॉइंट बताऊंगा, बिकॉज when we meet again during the course of mock interview, I'll see the personality. My colleagues will be with me. They will watch your personalities. आप में क्या क्या खामियां हैं, तो हम आपको फीडबैक भी देना पसंद करेंगे कि इसको आप इम्प्रूव करिए। कुछ बातें ऐसी जो मैं आपसे शेयर करूंगा इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, जो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी को एक निखार लाएगी। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप वेट करिए अपने इंटरव्यू के रिजल्ट्स का, अपने मेंस के रिजल्ट का, ये कोई ज़रूरी नहीं। अभी 15 दिन है, उसमें 12 दिन हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका टाइम आपने पूरा फरवरी वेस्ट कर दिया। अब ज़्यादा वेस्ट मत करिए। आई ऑलवेज टेल पीपल, कीप डूइंग समथिंग, कीप रीडिंग। आपको अपना जो नॉलेज बेस है उसको एनहांस करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। कीप रीडिंग समथिंग, कीप सोशलाइजिंग विद पीपल, डायलॉग विद पीपल, कन्वर्स विद पीपल, डिबेट विद पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। उससे आपको क्या होगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आज की डेट में नहीं हो सकता। क्यों? यू आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस कि मेरा काम होगा कि नहीं, क्या मैं फाइनली वेदर माई नेम विल बी फिगरिंग इन द लिस्ट ऑफ फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और नॉट। तो आपके अंदर बड़ी ये एक बेचैनी सी होगी ज़रूर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस स्ट्रेस को आपको ओवरकम करना है। अपना जो आत्मसम्मान हो या आपका मोटिवेशन लेवल हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो, इसको आपको बना के रखना है। ये आप याद रखिए। वो आज से ही शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द मेन एग्जामिनेशंस। आज से शुरू कर दीजिए। अगर न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स अच्छी हैं। नाम क्या लेना, न्यूज़पेपर तो आपको पता ही, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदूज आर नॉर्मली मेंशन। सिमिलरली फ्रंटलाइन इज कंसिडर्ड टू बी गुड मैगजीन, इंडिया टुडे इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड मैगजीन। पढ़िए। जिस लैंग्वेज में आपने इंटरव्यू देना है उसको इम्प्रूव करिए। आप उसकी कन्वर्सेशनल एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करिए, जिससे कि आपका आर्टिकुलेशन इम्प्रूव हो। कई लोग होते हैं वो चुप होकर बैठ जाते हैं। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, आप ना हाँ कहते हैं ना कहते, चुप रह जाते हैं। दैट इज़ ए बैड क्वालिटी। अगर आपको नहीं आता है, रिवॉल्व इट इन योर माइंड। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है, उसको थोड़ा सोचिए कि आपको आता भी है कि नहीं, आपने सुना ही नहीं है तो साफ साफ कह दीजिए, सर आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो। मैं आई कैन गारंटी यू, आई कैन चैलेंज एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपने 10 में से 6 क्वेश्चन भी नहीं आंसर किए, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, यू आर स्टिल गोइंग टू बी
वन अमंग दी टॉप 40 पीपल, ये याद रखिए आप। बट मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ इफेक्टिवली, हाउ कॉन्फिडेंटली यू यूज योर नॉलेज। आपको वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लीव इट टू दी बोर्ड मेंबर्स और लीव इट टू द टीचर्स, स्पीक वेरी ब्रीफली टू द पॉइंट। जैसे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है, या चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, या कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, देखिए कितना ब्रीफ बोलते हैं। मैं आई यूज्ड टू अटेंड मीटिंग्स, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय सीनियर्स। आपको बहुत ब्रीफ रहना पड़ेगा, कोई वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू स्पीक इज एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। वर्बोसिटी इज योर एनिमी। कई लोग बड़े लंबे चौड़े, जैसे मेंस का वो ऐसे लिख रहे हैं या मेंस का आंसर दे रहे हैं, उस तरह का आपको क्वेश्चन आंसर नहीं देना। ब्रीफ टू द पॉइंट, अटैक, जो आपसे पूछा गया उसी को अटैक करिए, ज़्यादा नहीं। थिंक अबाउट इट। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ जंपिंग एंड स्टार्ट गिविंग आंसर्स विच इज इनकरेक्ट। Apply your mind for 5 to 7 seconds. Give an impression to the interview board that you are thinking about it. ऐसा नहीं आपने you have learned something by rote, आपने रट किया और काम हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर सिविल सर्वेंट्स कहलाना भी मेरे ख्याल है मुश्किल नहीं है। मतलब आप आधा पाव भी सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। मैं अगर आप एक बड़ा क्रूडली रखूँ, जैसे कि पाकिस्तान के किसी मंत्री ने कहा था हमारे पास आधा पाव के बम है, मैं कहूँगा आप आधा पाव सिविल सर्वेंट भी नहीं बन पाएंगे। उसकी क्वालिटीज़ को आप इम्बाइब करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल आता है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आज ही से आप कर दीजिए, डोंट वेट फॉर दी रिजल्ट्स। अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिए आप, डिग इट आउट फ्रॉम योर ओल्ड फाइल्स, रीड इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। जनरेट योर ओन क्वेश्चंस कि आपसे क्या पूछ सकते हैं। यू आर द बेस्ट मास्टर ऑफ योरसेल्फ। आप किस तरह आप उसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, आपकी हॉबी ये है, उसमें किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। और आप किस जगह के आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या तेलंगाना के हैं कहीं के, उसके बारे में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना शुरू कर दीजिए। टाइम इज आपको, अगर आप दिल्ली के हैं तो हो सकता है कि विदिन 10 days यू विल स्टार्ट गेटिंग ए समन लेटर, कॉल लेटर आपके इंटरव्यू का आ जाएगा। तो उसके लिए आपको तैयारी आज से स्टार्ट करनी है। ये उम्मीद रखिए कि आपके पास इंटरव्यू कॉल आने वाला है, कभी भी वेट मत करिए। बट यू आर वन ऑफ द होपफुल्स। आई नो इट्स ए वेरी टफ कॉम्पिटिशन, बट ऑलवेज रिमेन होपफुल। नेवर कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। आई नो दे में भी एक होता है फियर ऑफ द अननोन, जैसे कहते हैं। आपको क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा है, क्या हमारे में भी ये चीज़ें थी। कोई आप में नई चीज़ें नहीं है। आई वॉज वेरी मच वरीड, आई हैड नो जॉब, आई वाज जॉबलेस। बट देन एक डर होता है कि क्या होगा, क्या कैसे मिलेगा। तो उस पर आप करिए, सोशलाइज करिए, डायलॉग करिए दूसरों के साथ। यू विल ओपन अप, आपका आर्टिकुलेशन बहुत इम्प्रूव होगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट में एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपके जेस्चर्स, पॉस्चर्स, आप कैसे बैठे हैं, आपकी हाथ कहाँ रखे हुए हैं, कैसे रखना है आपको। वेदर यू आर स्पीकिंग विद योर हैंड्स, मैनी थिंग्स विच आई डोंट थिंक एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स I know of have done, but I have introduced wherever I have gone. I have introduced these practices. मेरी किताबें भी निकली हैं एंड बच्चे पढ़ते हैं उसको। इंटरव्यू टेक्निक के ऊपर भी बनी है और प्लानर के ऊपर भी मैंने लिखी है। तो बच्चों को फ़ायदा हुआ है, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं जैसा मुझे फीडबैक मिला था, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक मार्केटिंग माई बुक, नो, दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन। बट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। डोंट नोट डाउन एनीथिंग। आप जितना भी मैं आपको बताया है, सी दी वीडियो अगेन एंड अगेन। मैंने जो चीज़ें आपको पॉइंट बताई हैं उनको याद रखिए, एक दफ़े देखिए, 2 दफ़े देखिए एंड इन्वाइट करिए उसको कि कैसे करना है। मेनली बाई नोटिंग डाउन यू वोंट गेट एनीवेयर। ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको इंटरव्यू के दौरान बताऊँगा। आज भी बता सकता मैं, इंटरव्यू में मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि आपको इस तरह का मैचिंग होना चाहिए। सिंपल, लुक सिंपल, डोंट लुक कॉकी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, दिस इज़ योर एनिमी। ये कोई बाद में तो यू विल बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, यू विल बिकम वेरी एब्रेसिव
एंड वो चीज़ें बात के लिए छोड़ लीजिए, जब बन जाएंगे तो गुरूर आ जाता है, दैट इज़ स्वाभाविक। लेकिन आज की डेट में किसी किस्म की एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। वी शुड बी वेरी पोलाइट विद द बोर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट के बाद ही बता पाऊँगा। आज तो मैं बिल्कुल हवा में बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ब्रॉड पॉइंट, बिकॉज टाइम इज़ द मेन लिमिटेशन। तो आपका जेस्चर्स, पोस्चर्स वगैरह कैसा है वो बहुत, और ये मैं अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, डोंट फील अपसेट। पीपल कैरी इट एज अ बैगेज कि गया हो गया, एंड बैगेज मीन्स स्ट्रेस। वो आपको कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे कि आप घबरा जाते हैं। स्ट्रेस में नहीं आना। इफ दे लाफ एट यू, डोंट ज्वाइन देम, रिमेन सीरियस, रिमेन अननर्व्ड। देखिए, वो अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं उसका भी उनको फ़ायदा है कि वो आपकी पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं। हाउ यू रिएक्ट अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इज़ नॉट वेरी मटेरियल। अगर आपने 10 में से, आई नो ऑफ केसेस, मैनी पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय मी, आई एम प्राउड ऑफ देम, दे आर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन दी यूपी गवर्नमेंट। बहुत कोई डीएम होकर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया है, कोई कुछ बन गया है, तो काफ़ी मैंने लोगों की मदद करी है अपने दिल से। और एक चीज़ में हेल्थ आपको बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ, particularly in the present times when we are all passing through the corona pandemic. आप डिस्टेंसिंग रखिए, जो भी चीज़ आपको बता रखा है, अपना जो वैक्सीनेशन है तो वो कर लीजिए आप। तो उसमें आप हेल्थ में आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी आपने बहुत मज़े कर लिए हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर ली है, यू हैव बीन टेकिंग लॉट ऑफ जंक फूड, प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस, टेक सिंपल न्यूट्रिशियस फूड, ले मोर इफेक्ट्स ऑन लिम्फेसिस। आपको ये कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता इंस्टीट्यूट, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। बट इफ योर हेल्थ इज नॉट गुड, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू विल परफॉर्म, योर परफॉर्मेंस विल बी द लोएस्ट। बट इफ यू आर कीपिंग गुड हेल्थ, इफ यू हैव ए साउंड स्लीप of 9 hours on the day before on the night before the interview, it will give you focused attention. ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल आपने देखा YouTube में देयर नंबर ऑफ व्हाट यू कॉल mock interviews which are being promoted by the various institutes to promote themselves. वो टॉपर्स के साथ नंबर 1, 2, 3, 4 सबके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, और जब आप उसको देखते हैं इंटरव्यू को, यू फील मिजरेबल बिकॉज यू हैव ए फीलिंग, आपको डिप्रेशन हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाता है, हीन भावना आ जाती है, क्योंकि यू फाइंड योरसेल्फ नोवेयर। ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है भाई बच्चा या बच्ची जो भी है, लेकिन मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा तो क्या होगा। प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट वॉच सच इंटरव्यूज, दे आर ऑल स्टेज मैनेज्ड। I am saying it with a disclaimer. I am not naming any institute. Let them do whatever they like, but please don't watch such interviews because you will get demotivated. It will affect your own personality before the interview. आप आत्मनिर्भर बनना सीखिए। प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है, वो मंत्र आप ज़रूर उसको अप्लाई करिए अपने ऊपर। एंड आई थिंक दैट्स ऑल आई हैड टू I didn't want to condemn any other coaching institute जो ऐसे video, this is the disclaimer I am adding. I have no intention to condemn anybody, but whatever I am saying, it is because other candidates also shared the same thing with me, and I am sharing it with you. So I think on this note, I take leave of you and wish you all the very best, and hope to see you soon when the mock interviews start. I'll be more focused in my feedback to you, which I will always do it. मैं आपकी खामियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, या आपकी स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, सब आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको उससे फ़ायदा होगा। अभी तक 5-6 हज़ार बच्चे हो सकता है फ़ायदा ले गए हों मेरे साथ, जिनको मैंने मेंटोर किया है। तो मैं चाहता हूँ आप भी उसमें रहें, एंड आई विश दैट योर नेम फिगर्स इन द टॉप 100. I want you, and you shall make it. Please. So till we meet next time, all the very best.